So guys, good morning. And yesterday we did it till question number 8. Now we are left with only 2 questions for today. That is question number 9 and question number 10. So we'll complete the 9 first and then take on the 10th. Correct? Let's start. Question number 9. The following is a balance sheet of RM Industry as on 31st March 2014. So balance sheet दिया हुआ है. Liabilities rupees in lakhs. Capital and reserve 16,500, debenture 9,000, creditor for purchase 6,000, creditor for expenses 700, provision for bonus 300, provision for tax 1,000, proposed dividend 500, total comes to 34,000. Assets rupees in lakhs, fixed assets at cost 13,000, less debris 4,000, answer comes to 9,000. Sundry debtor 7,000, stock and stores 12,000, loans and advances 5,000, cash and bank balance 1,000, total comes to 34,000. The projected profit and loss account for the first 4 months of 2014 and 15 shows the following. Sales 8,800, April, May, June, July, चारों month के sales है. Materials में opening stock, purchase, closing stock, net, expenses है और excise duty है. And we get the total, that is profits. Profit or loss, first year profit, second year profit, third year profit, and the fourth year is the loss. The following is relevant additional information. First one, 10% of sales are for cash and balance on credit for 1 month. Creditor for purchase are paid after a month. Expenses include interest payable at the end of each quarter. Depreciation of 100 lakh per month. Provision for bonus to the workmen rupee 50 lakh per month payable only in October. 1/2 of the rest of expenses are payable in the month following. Rupee 2,000 lakh of debentures are redeemable on 30th of June. Provision for taxation includes rupee 200 lakh of surplus provision carried forward from earlier year. Besides, the balance for the year 13-14 is payable before 30th June 2014. Annual general meeting is to be held on 31st May 2014. Overdraft is permissible, interest on which may be ignored. You are required to prepare cash budget for the months of April to July on monthly basis. मतलब April, May, June, July. How many months? 4 months. So 4 months के monthly basis पे हमें cash budget बनाना है. But inflows, first line, 10% of sales are on cash and balance is on credit. So पैसा आएगा cash sale से, पैसा आएगा debtor से. Creditor for purchase मतलब payment, expense, interest, expense, debris record नहीं होता. Provision for bonus, outflow. 1/2 of the rest, outflow. Debenture, outflow. Provision for tax, outflow. Annual general meeting 31st May को हुआ है. पता नहीं क्यों बता रहे हैं आपको. Invite करने वाले होंगे. And they have given you the information. 4 महीने का cash budget. Can I start with formatting first? चलो, question number 9. Four months. So पहला column होगा अपना particulars, and then we need 4 columns. April, May, June, July. So this is April, this is May, this is June, this is July. Correct? Now format is simple. A, opening balance. A is what? Opening. कितना cash था? Have they given you balance sheet? Balance sheet में assets देखिए. Do we have any cash in bank given to us? कितना दिया हुआ? So we have got opening balance में 1,000. And rupees are in lakhs. बैलेंस शीट के ऊपर ही लिखा हुआ है अमाउंट कॉलम में. सो हमारे पास 1,000 लाख रुपीस है स्टार्टिंग में. नाउ बजटिंग इज बी. इनफ्लोज, पैसा कहाँ से आएगा? तो फर्स्ट वन कैश सेल्स एंड सेकेंड वन रिसीट फ्रॉम होम, डेटर्स. देन टोटल ऑफ बी, total of
A plus B. C, outflows. C is what? Outflows. Outflows पैसा जाएगा कहाँ पे? So first of all हम परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, तो हमें पेमेंट किसको करनी पड़ेगी? क्रेडिटर्स को, करेक्ट है? उसके बाद हमारी पेमेंट किसको होगी? एक्सपेंसेस इंक्लूड उन्होंने कहा था, इंटरेस्ट पे करना है, सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन व्हाट? डिबेंचर. डेप्री नहीं आता, बोनस टू वर्कमैन, करेक्ट? एक्सपेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को रिडीम करने का पैसा देना पड़ेगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. देन वी हैव गॉट प्रोविजन फॉर टैक्स. अच्छा, देन दे वर टॉकिंग अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग. कुछ हिंट मिला आपको? एनुअल जनरल मीटिंग. डू वी हैव डिविडेंड इन द बैलेंस शीट? प्रपोज डिविडेंड. चेक करो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे है ना. एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है? लोगों को खुश करना होता है, डिविडेंड पे करेंगे. सो वी विल से प्रपोज्ड डिविडेंड पे करना. एनीथिंग एल्स दैट यू कैन सी. एक और चीज दिख रही है हमें आउटफ्लो में, दैट इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी. सो एक्साइज ड्यूटी एंड देन वी हैव द टोटल. सो दैट्स C. and last में we'll have D, that is closing balance bracket में A plus B minus C. सिंपल. चलो एकदम आराम से कहानी बनाते हैं. फर्स्ट वन, ओपनिंग 1000 था, अब हम लोग बोल रहे कैश सेल्स कि हम कैश में कितने गुड्स बेचेंगे. सो हैव दे गिवन यू सेल्स फॉर ईच मंथ? अप्रैल में सेल कितना हुआ? 8,800. मई में 8,800, जून में 9,900 और जुलाई में 9,900. ये सेल हुआ है, बट वी नो दैट सेल कैन बी ऑन कैश और सेल कैन बी ऑन क्रेडिट. तो हमारे लिए कैश बजट में इंपॉर्टेंट क्या है? सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पैसा कब आ रहा है ना. तो पैसा कब आ रहा है? फर्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि 10% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश एंड बैलेंस इज फॉर क्रेडिट ऑफ 1 मंथ. 10% ऑफ सेल्स इज फॉर कैश, मतलब 10% ऑफ गुड्स हम लोग कैश में बेच देंगे. तो कहना है इसे पैसा तो उसी मंथ में आ जाएगा. कितना परसेंट पैसा आएगा उसी मंथ में? 10%. और बाकी का 10%, बाकी का 90% जो बचता है, कहना है इसे क्रेडिट पीरियड फॉर 1 मंथ, मतलब उसका पैसा कब आएगा? नेक्स्ट मंथ में. ओके, अप्रैल का सेल्स कितना? उसका 10% कितना? वेरी गुड. तो अप्रैल में 880, मई में 880, जून में 990, जुलाई में 990. ये किसकी कहानी बनाई हम लोग ने? कैश सेल. पैसा उसी मंथ में आ गया. अब आप देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं हम लोग, दैट इज रिसीट फ्रॉम हुम? डेटा. द कैलकुलेशन अप्रैल, मई, जून, जुलाई. फर्स्ट वन, सबसे टॉप लाइन पे हम लोग लिख रहे हैं पहले क्रेडिट सेल्स. कौन सा सेल? 10% इज कैश, सो कैन आई से 90% इज क्रेडिट. ओके, फर्स्ट वन अप्रैल का 8,800 का 90%. चलो कैलसी है आपके पास, 8,800 का 90%. कितना आ रहा है? वेरी गुड. तो 7,920 का सेल कब हुआ? अप्रैल. अगेन आएगा 7,920 का सेल कब हुआ? मई. क्रेडिट सेल बोल रहे हैं. अच्छा, जून में इज इट 9,900? उसका 90% बराबर है. कितना आ गया? 8,910 जून, 8,910 जुलाई. बट ये क्या मिला हम लोग को? क्रेडिट सेल. Now what are we required to find out is कि इसका पैसा कब आ रहा है. They said that 10% of sale is for cash and balance is for 1 month credit. That means अप्रैल का पैसा आएगा कब?
जून में, रिसीट जून, रिसीट सॉरी अप्रैल का मई, मई का जून, जून का जुलाई, and the only missing link here is April. अप्रैल में कौन से मंथ का पैसा आएगा? नहीं, पीछे वाला मार्च। और वो मार्च कहाँ से मिलेगा हम लोग को? Have a look at the balance sheet. That's why they have given you the balance sheet, guys. If you look at it well, balance sheet में do you have datas? कितने के datas दिख रहे हैं आपको? 7,000? क्या है ये datas? मार्च का सेल, और वो मार्च के सेल का पैसा आएगा कब? अप्रैल में। तो मार्च के सेल का पैसा जो अप्रैल में आएगा, द अमाउंट इज हाउ मच? 7,000. इज इट क्लियर विद दैट वन? सो अप्रैल में पैसा कब आ रहा है? मार्च का। अप्रैल का पैसा कब आएगा? मई। मई का पैसा कब आएगा? जून। जून का पैसा कब आएगा? जुलाई। कैश बजट की थिंकिंग क्या चल रही है? पैसा कब आएगा? आई यू अंडरस्टैंडिंग इट? अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से ये कैल्सी खरीद के लेके आओ, तो हमने कैल्सी खरीद लिया, कैल्सी आ गया, पर पैसा आज दिया नहीं, तो कैश बजट डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट। कैश बजट क्या कहता है मालूम है? पैसा कब जा रहा है। अगर हम उसको जाके 2 महीने के बाद पैसा देंगे तो हमारे कैश बजट में वो 2 महीने के बाद दिखेगा। दैट इज द फंड ऑफ द कैश बजट। आर वी क्लियर विद दैट वन? ओके, फर्स्ट वन, रिसीट फ्रॉम डेटर 7,000, 7920, 7920, 8910. Now we take a total. पहले सिर्फ बी का टोटल करेंगे हम लोग। 880 प्लस 7,000, 7880. नेक्स्ट वन 7920 प्लस 880 is 8,800. नेक्स्ट वन 7920 प्लस 990, कितना बोला सर आपने? वेरी गुड। और लास्ट भी बोल दीजिए। 8910 नहीं, प्लस 990 है ना? If I'm not wrong, is it 9,900? Okay. 7,880,000. Is it 8,880? Got that? Too good. Okay. Outflows. अब पैसा जा कहाँ रहा है? तो सबसे पहला पैसा किसको जा रहा है? क्रेडिटर को। तो what do you mean by creditor? जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसे पेमेंट कब कर रहे हैं? So what are they saying? Have a look at the question again. Creditor for purchase are paid after a month. Note number 2 दिख रहा है आपको? Creditor for purchase are paid after a month. मतलब क्या हुआ? बोलिए। मतलब हम आज परचेज करेंगे? वेरी गुड, झकास। चलो अप्रैल में जाओ। अप्रैल में परचेज कितना है? मिला? वेरी गुड। अप्रैल का परचेज कितना है? 6,000। पेमेंट कब करेंगे? मई। वेरी गुड। सो अप्रैल में जो भी लिखा है उसका पेमेंट अप्रैल में नहीं होगा, उसका पेमेंट कब होगा? मई। जकास। मई में 6,600 पेमेंट कब होगी? जून। और जून में 7,200 पेमेंट कब होगी? जुलाई। अब आराम से थोड़ा सोच के बोलना आप कि अप्रैल में किसका पेमेंट होगा? मार्च। और 1 महीना बोला है तो बैलेंस शीट में अपने कोई क्रेडिटर्स दिखेंगे, वो 1 मंथ के होंगे। सो बैलेंस में देखिए आपको कोई क्रेडिटर्स दिख रहा है? क्रेडिटर फॉर परचेज। एंड हाउ मच इज क्रेडिटर फॉर परचेज दैट यू कैन सी? 6,000। तो ये जो क्रेडिटर बैलेंस शीट में दिख रहा है वो मार्च का परचेज था। सो 6,000। इज इट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? चलो नेक्स्ट। नाउ दिस इज द क्लास एडजस्टमेंट। इसी की वजह से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। एक्सपेंस, हैव अ लुक एट दैट। एक्सपेंस इंक्लूड interest payable at the end of each quarter. Expense includes, go to P&L account और P&L account में आप expenses देखिए।
expenses. I can see expenses of 1800, 1800, 2000 and 2000. Can you see that? Working note number 2. Expense. April, May, June, July. This expense includes what? Expense का जो amount दिया उन्होंने, this is 1800, 1800, 2000, 2000. Expense includes मतलब ये expenses के अंदर already वो amounts है. कौन से amounts है? First one, interest payable at the end of interest. Interest pay करना है तो किसी लोन या डिबेंचर पे पे करेंगे. Go to your balance sheet एक बार, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आप देखिए. डू यू सी 12% डिबेंचर्स 9000. दैट मीन्स ये 9000 रुपये पे कितना इंटरेस्ट भरना है हमें? 12%. पर एक महीने का भरना है, सो 9000 इंटू 12%, एक महीने का इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12, आंसर कम्स टू 90. मतलब हर एक मंथ के एक्सपेंस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. मैं पहले ये इंटरेस्ट को निकाल रहा हूँ इस एक्सपेंस के अंदर से. आई एम सेइंग लेस इंटरेस्ट 90, 90, 90, 90. Are you understanding that? See the calculation that I have done. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए बाजू में. Interest is equal to 9000 into 12% into 1 by 12. 9000 का 12% interest and for a month that is 90 rupee. Now that is included in every month. बट इसमें भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन में कहीं पे कहा था कि हम डिबेंचर रिडीम भी कर रहे हैं. एडजस्टमेंट नंबर 4, ₹200 lakh of debentures are redeemable by 30th June. 2000 lakh of debentures are redeemable by 30th of June. तो 30th June के बाद इंटरेस्ट 90 नहीं जाएगा, डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे. सो इंटरेस्ट 9000 में से अगर 2000 रिडीम हो जाएंगे तो सिर्फ 7000 के डिबेंचर बचेंगे, और 7000 पे 12% फॉर अ मंथ विल बी 70. तो यहाँ पे 90 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे कितना इंक्लूडेड है? 70. अब ये सारे अमाउंट एक्सपेंस के अंदर इंक्लूडेड है, पर पे हर मंथ नहीं हो रहा है. पे कब हो रहा है? वी विल रीड दैट पार्ट अगेन. इंटरेस्ट इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने के बाद. क्वार्टर एंड्स ऑन मार्च, क्वार्टर एंड्स ऑन जून, क्वार्टर एंड्स ऑन अक्टूबर, नहीं सितंबर, एंड देन द क्वार्टर एंड्स ऑन. तो पेमेंट कब कब होगी? मार्च, वो तो आया ही नहीं. फिर पेमेंट कब होगी? जून. मतलब ये तीनों का इंटरेस्ट, अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट मिला के पेमेंट कब करेंगे हम लोग? जून में. बट वो हर एक मंथ के एक्सपेंस में हम लिख देते हैं. हर एक मंथ लिखते हैं 90 का खर्चा हुआ, 90 का खर्चा हुआ, 90 का खर्चा हुआ. खर्चा हुआ लिख दिया पर पे नहीं किया. पे कब कर रहे हो उसको? जून में. सो ये सिर्फ यहाँ पे होगा, और ये तो पे कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर में जाके पे होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. सो पेमेंट यहाँ पे हर मंथ के एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे हम लोग, बट पेमेंट 90, 90, 90, दैट कम्स टू व्हाट? 270 इन द मंथ ऑफ जून. Interest on debenture 270 in the month of June. Are we clear with that one? And यहां से तो माइनस हो ही जाएगा गाइस. नेक्स्ट वन, और क्या है? इंटरेस्ट पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. डन. डेप्रीशिएशन ऑफ ₹100 lakh पर मंथ. एक्सपेंस के अंदर ही डेप्रीशिएशन भी इंक्लूडेड है. 100, 100, 100, 100. हर एक मंथ हम लोग ने 100 रुपये का डेप्रीशिएशन रखा है. बट डेप्री इज इट अ कैश एक्सपेंस और अ नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश. डेप्री पे करना ही नहीं होता है. ये तो हम ऐसे ही लिख देते भाई कि एक्सपेंस हुआ हमारा 100 का, बट वी आर नॉट पेइंग एक्सपेंस. इन दैट सेंस यहां से माइनस होगा, बट कैश बजट में दिखेगा नहीं, बिकॉज वो तो पैसा जा ही नहीं रहा है कभी भी. थर्ड, provision for bonus to the workmen ₹50 lakh per month payable only in October. Provision for bonus, हम लोग अपने वर्कर्स को बोनस देंगे, और हर मंथ हम कितने का बोनस देंगे? 50. तो यहाँ पे बोनस भी इंक्लूडेड है. 50, 50, 50, 50,
हर एक मंथ में इंक्लूडेड है, पर पेमेंट कब करने वाले हैं? अक्टूबर। और हम कैश बजट कब का बना रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हर एक मंथ में एक्सपेंस लिख के रखा है, बट पेमेंट तो अक्टूबर में जाके कर रहे हैं। मतलब बोनस टू वर्कमैन अप्रैल में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में नहीं होगा, बट एक्सपेंस में तो लिखा है, तो यहां से माइनस तो होगा, बट पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट कब होगी? अक्टूबर में। आर यू क्लियर विद दैट वन? नेक्स्ट, provision for bonus to the workmen at 50 lakh per month payable only in October. 1/2 of the rest of the expenses are payable in the month following. 1/2 of the rest of the expenses. Now, the rest of the expenses, 1,800 minus 90 minus 100 minus 50. Please. 15? Check कर लेता हूँ मैं एक बार. 90 and 150, 1560. यहाँ पे 1560. Is it 1560 यहाँ पे भी? यहाँ पे is it 1760? और लास्ट में if I am not wrong is it 1780? चेक कर लो एक बार. 2000 minus 70 minus 100 minus 50. पक्का ना? Now these are the rest of the expenses. अब क्या बोला है? क्रैक करो इसको आराम से. 1/2 of the rest of the expenses are payable in the month following. मतलब इसमें से हाफ एक्सपेंसेस नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे, बट हाफ एक्सपेंसेस इस मंथ में पे करेंगे, हाफ एक्सपेंसेस नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे. मतलब 50%, 50%. इसका हाफ हम लोग इसी मंथ में पे करेंगे. 1/2 of the rest of the expenses are paid in the month following. मतलब next month. So 1560 divided by 2. Very good. 780 हम कब पे करेंगे? इस मंथ. बाकी का 780 हम कब पे करेंगे? नेक्स्ट मंथ. 780 1760 का हाफ 880. सो यहाँ पे 880 एंड 880. और 1780 का हाफ 890. अच्छा, तो ये कहाँ है? ये कौन से मंथ का हाफ है? मार्च. कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट. अगर पे नहीं किया है तो हमने बैलेंस शीट में लिख के रखा होगा कि वो हाफ मंथ का पे नहीं हुआ. वापस जाके देखिए आप. कैन यू सी क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस दिख रहा है आपको? क्रेडिट फॉर परचेज मिला था हमें, और उसके बाद क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस. हाउ मच इज क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस? ये कौन सा है क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस? एग्जैक्टली उसी हाफ मंथ का है, बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग हो गया. दैट इज व्हाट यू कैन सी इन द बैलेंस शीट. दिस इज द 700 दैट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम द बैलेंस शीट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ओके. 780 प्लस 700 1480. 780 780 1560. 780 880 1660. 880 890. टोटल कर लो. यस सर. 1770. जकास. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? इनफैक्ट यही वर्किंग नोट के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है. अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एज द प्रीवियस वन वाज. दे सेड एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट था, डेप्री था, बोनस था, हमने सब निकाल दिया. रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ढूंढे और उसका हम लोग ने हाफ स्प्लिट किया. कॉन्सेप्ट समझा? और उसके बाद इंटरेस्ट क्वार्टरली पे कर रहे थे, लिख दिया. डेप्री पे होता नहीं है, बोनस पे करना नहीं था, अक्टूबर में पे करना था, तो ये कैश बजट में नहीं दिखे. एक्सपेंसेस रेस्ट ब्रिंग टू कैश बजट. फर्स्ट वन एक्सपेंसेस 1480 1560 1660 एंड 1770. परफेक्ट. टू गुड. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने पहले ही पढ़ लिया था. कब रिडीम कर रहे हैं हम लोग 2000 के डिबेंचर? आई गेस इन द मंथ ऑफ जून. सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डैश अप्रैल मई जून में 2000 के डिबेंचर्स रिडीम डैश. टैक्स कब पे करना है? चलो देखो जरा टैक्स कब पे करना है. Provision for taxation includes 200 lakh of surplus provision carried forward from the earlier year. Besides, the balance for the year 13 and 14 is payable before what date? 30th June.
प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में जाके चेक करो कितना है 1000, उसमें से लास्ट ईयर का सरप्लस कितना था 200, तो 1000 में से 200 तो सरप्लस था, वो तो करना है, तो पे कितना करना है 800, और कब पे करना है जून, कब पे करना है जून। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अप्रैल में जून में 800 डैश। प्रपोज डिविडेंड कब कहा था उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है 31st मई। सो कंपनीज एक्ट 1956 टेल्स मी दैट अगर 31st मई को एनुअल जनरल मीटिंग हो गया तो नेक्स्ट 30 डेज में डिविडेंड पे होना चाहिए। कितने डेज में नेक्स्ट 30 डेज। दैट्स योर कंपनीज एक्ट 1956 गाइस। गो टू द बैलेंस शीट अगेन, लायबिलिटी साइड पे कैन यू सी प्रपोज डिविडेंड कितना 500 प्रपोज करके रखा है। एनुअल जनरल मीटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाए भाई पे करना पड़ेगा, सो विल हैव टू पे। मई में मीटिंग हुआ है तो हम लोग पेमेंट कब करेंगे उसकी जून में। फिर से प्रपोज डिविडेंड 500 इन द मंथ ऑफ जून। दिस इज कैश बजट का इंपॉर्टेंस, यू नो। आप देख रहे हो बेटा जून में एकदम कंटिन्यूस पेमेंट्स जा रहे हैं। अब ये हम लोग है ना प्रिपरेशन आज कर रहे हैं, सो वी आर थिंकिंग टुडे, वी आर स्टैंडिंग इन अप्रैल स्टार्टिंग, और हम सोच रहे हैं नेक्स्ट 4 महीने में क्या होने वाला है। तो आइडिया से क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे कि जून में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट राइट नाउ। ओके, एक्साइज ड्यूटी, वन थिंग दे डिड नॉट टेल यू कब पे हो रहा है, बट आप पीएनएल अकाउंट में जाके देखिए, कैन यू सी एक्साइज ड्यूटी एग्जैक्टली उसी मंथ में पे कर देंगे हम लोग। अप्रैल में एक्साइज ड्यूटी कितना है 800, मई में 840, जून में 880, 920. This are payment of excises guys. Clear? Too good. और कुछ बचा क्वेश्चन के अंदर? पॉइंट नंबर 7 ने कहा था ओडी इज परमिसिबल। ओडी इज परमिसिबल का मतलब आप नेगेटिव बैलेंस को कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए पहले हम टोटल करेंगे सी की अभी 6000, 1480, 8280, नेक्स्ट वन 6, 1560, 840, 8400, next 6600, 270, 1660, 2800, 500, 880, 12710, and last one 7200 plus 1770 plus 920 कितना जकास। चलो अब आप मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए। 8880 माइनस 8280, 8880 माइनस 8280, आई गेस आई एम लेफ्ट विथ 600 रुपी। पॉजिटिव है, अपना अप्रैल का क्लोजिंग अपना मई का ओपनिंग हो जाएगा, सो 600 रुपी से स्टार्ट करेंगे, प्लस 8800 इज 9400, 9400 माइनस 8400 इज 1000, 1000 plus 8910 is 9910, 9910 minus 12,710, 9910 minus 12,710 is equal to how much 2800 नेगेटिव। ओडी कंटिन्यू कर सकते हैं उन्होंने कहा है, तो 2800 नेगेटिव ऊपर लेके जाएंगे आप। अभी हमारे पास 9900 आ रहा है, 7100 पॉजिटिव हो गया, माइनस 9890 इज इक्वल टू 2790 नेगेटिव। दैट्स माय क्लोजिंग बैलेंस। मतलब जुलाई के एंड में हमारे पास नेगेटिव 2790 होगा। वी नीड टू वर्क फॉर दिस 2 months हार्डर। गॉट दैट? दैट्स कैश बजट। टेक योर टाइम गाइस, कॉपी दैट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। पक्का? चलिए
So are we done writing? Too good. Can I pick up the last question? Question number 10. First, a new manufacturing company is incorporated from Jan 2012. New manufacturing company. Underline the word new manufacturing company. What do you mean by new manufacturing company? Very good. If the new company started, that means opening balance 0. अभी तो start किया हम लोगों ने. चलिए. Its authorized capital will be 2 crore divided into 20 lakh equity shares of 10 each. Authorized ये तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाने में काम आता है, वैसे कोई काम का नहीं है. It intends to raise the capital by issuing equity shares of 1 crore fully paid on 1st of Jan. 1 करोड़ हम लोग 1st of Jan को कलेक्ट करेंगे. तो कैन आई से ये हमारे लिए इनफ्लो हो जाएगा. Besides, a loan of 13 lakh at 12% per annum will be obtained from financial institution on Jan, and further borrowing will be made at the same rate of interest on first day of the month in which borrowing is required. मतलब पहले तो हम लोग 1 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर इशू करेंगे, एग्जैक्टली उसी मंथ में 13 लाख रुपये का लोन लेंगे जो 12% पर एनम पे आएगा. और अगर फ्यूचर में कहीं पे भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ी आपको, तो आपको लोन वो 12% पे ही मिलेगा. Next, all borrowings will be repaid along with the interest at the expiry of 1 year. जितने भी आप लोन लेंगे आपको वो पेमेंट कब करनी पड़ेगी? 1 साल के बाद along with interest. मतलब बीच में कहीं हमें लोन पे करना नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है. कब पे करना है? 1 साल के बाद. Next, the company will make payment for the following assets in Jan. Now, Jan में हम लोग ये सारे assets भी खरीदेंगे. Plant, machinery, building, furniture, motor vehicle, stock of raw material. कहना है ये सारे हमारे लिए आउटफ्लो होंगे, पैसा जा रहा है. Projected sales और further details are as under. First one, Jan में sale, Feb में sale, March में sale, April में sale, May में sale, June में sale. GP is 25% on sale. If GP is 25% on sale, COGS is 75% on sale. Assuming opening stock will be equal to closing stock, can I say COGS will be 75% of sales? Next, the company will make credit sales only, and this will be collected in second month following the sale. Company will make credit sale only. मतलब हम लोग कैश में गुड्स तो बेचेंगे ही नहीं, सिर्फ कैसे बेचेंगे? क्रेडिट में. और वो पैसा कब कलेक्ट करोगे आप? इन द सेकेंड मंथ. मतलब कब? जैन में हम जो गुड्स बेचेंगे उसका पैसा कब आएगा? वेरी गुड. नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स विल बी पेड इन द फर्स्ट मंथ फॉलोइंग क्रेडिट परचेज. देयर विल बी क्रेडिट परचेज ओनली. मतलब क्रेडिटर को पैसा कब पे करेंगे? मतलब नेक्स्ट मंथ. जैन में हम परचेज करेंगे तो पेमेंट कब करेंगे? फेब. वंडरफुल. द कंपनी विल कीप मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 10 lakhs. Depreciation will be charged at the rate of 10% on cost of all fixed assets. Payment of preliminary expenses of rupee 1 lakh will be made in Jan. मतलब ये खर्चा होगा जैन में. Wages and salaries will be 2 lakh each month and will be paid on the first day of the next month. मतलब क्या हुआ? पढ़ो आराम से एक बार. वेरी गुड. तो जैन का वेजेस एंड सैलरी कब पे करेंगे? फेब. फेब का कब पे करेंगे? मार्च. मार्च का कब पे करेंगे? अप्रैल. जकास. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 लाख पर मंथ एंड विल बी पेड इन द मंथ ऑफ इंकरेंस. मतलब जिस मंथ में खर्चा होगा उसी मंथ में पे करोगे. तो जैन का पैसा जैन में ही जाएगा. नेक्स्ट, अज्यूम नो मिनिमम रिक्वायर्ड कैश बैलेंस. You are required to prepare monthly cash budget from Jan to June, the projected income statement for 6-month period and projected balance sheet on 30th June 2012. कैश बजट फ्रॉम जैन टू जून. 6 महीने का कैश बजट बनाना है हमें. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 6 months का कैश बजट एंड समथिंग एडिशनल, एंड दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज पिक्ड अप फॉर. दे आर आस्किंग यू 6 month का इनकम स्टेटमेंट, मतलब ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है 6 months का, प्लस हमें प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना है 6 months. तो 6 months का बैलेंस शीट भी चाहिए गाइज हम लोगों को. आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट? 6 months का बैलेंस शीट नहीं, 6 months के बाद बैलेंस शीट. बट पहले
चलो P&L और बैलेंस शीट तो आपने किया नहीं कभी, बट आई गेस कैश बजट तो साथ में बना ही सकते हैं ना। चलो फॉर्मेट बनाइए 6 मंथ्स का पहले, पर्टिकुलर्स जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्वेश्चन नंबर 10, टाइटल पे लिखेंगे कैश बजट फ्रॉम जैन टू जून 2012। Question number 10, and we need to prepare format for how many months? 6 months. Jan, Feb, March, April, May, June. चलिए details. This is Jan, this is Feb, this is March, this is April, this is May and this is June. करेक्ट है। फर्स्ट ए क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले? ओपनिंग बैलेंस, एंड इफ यू रिमेंबर ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही नहीं बिकॉज ये तो नया कंपनी है। बी में इनफ्लोस, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे पैसा आएगा इश्यू ऑफ इक्विटी, पैसा आएगा बैंक लोन, एंड देन पैसा आएगा डेटर्स से, बिकॉज ये क्वेश्चन में हमारे पास कैश सेल्स नहीं है, सो रिसीव फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट विल पुट इन द टोटल दैट इज बी। द नेक्स्ट टोटल इज ए प्लस बी। नेक्स्ट इज सी, दैट इज आउटफ्लोज। पैसा जाएगा कहाँ पे? सो आई गेस सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, प्लांट, लैंड, फर्नीचर, मोटर एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। तो मैं फिक्स्ड एसेट्स अलग लिखता हूँ और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अलग लिख रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद क्रेडिटर को पैसा जाएगा, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सो आई विल पुट क्रेडिटर्स, preliminary expenses, then we have administration expenses if I'm not wrong, and what I forgot, salaries and wages, that means wages and what? Salaries. Got that? Too good. Wages and salaries नहीं लिखा है, क्या लिखा है? Salaries and wages. पक्का? Okay, too good. Are we clear with that? Too good. Next line पे हम लोग लिखेंगे C, and that will be C मतलब किसका टोटल आएगा ये? नहीं, ये आउटफ्लो, सिर्फ C का टोटल करेंगे, और उसके बाद हम किसका टोटल करेंगे? D, that is closing balance A plus B minus C. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कोई मिनिमम कैश बैलेंस नहीं है, बट अगर उन्होंने कहा था आपको लोन लेना है तो यू कैन टेक इट, एंड दैट लोन विल कम एट द रेट ऑफ 12% ओनली. सो आई एम क्रिएटिंग 109 क्लोजिंग बैलेंस के बाद एड द लोन एट द रेट 12%. अगर ज़रूरत पड़ी तो, एंड कॉमन सेंस कहता है ज़रूरत कब पड़ेगी भाई? अगर बैलेंस नेगेटिव चला जाएगा तो हमें लोन लेना पड़ेगा. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने कहा था बैंक ओडी विल कंटिन्यू, मतलब बैंक में नेगेटिव हो जाएगा तो चलेगा. यहाँ पे बैंक ओडी नहीं बोला है, उन्होंने कहा आपको लोन लेना है तो आप लोन ले सकते हो 12% पे. सो यू कैन नॉट अलाउ द नेगेटिव बैलेंस फ्रॉम 1 मंथ टू गो टू द नेक्स्ट मंथ. सो ये बैलेंस ज़ीरो करके ही भेजना पड़ेगा आगे. ज़ीरो करने के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी. सो वी आर पुटिंग अ लोन, एंड देन वी राइट द लास्ट लाइन दैट इज नोन एज एडजस्टेड क्लोजिंग. Are we clear with that one? Too good. Adjusted closing होगा वो ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट मंथ का. चलो एकदम आराम से काम चालू करते हैं. फर्स्ट वन, इनफ्लोज, इश्यू ऑफ इक्विटी. कितने के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं हम लोग? कितने के? 1 करोड़. 2 करोड़ तो ऑथोराइज कैपिटल था सर,
ऑथोराइज का मतलब होता है मैक्सिमम दैट अ कंपनी कैन कलेक्ट, पर हम आज इश्यू कितने कर रहे हैं? 1 करोड़। और बाकी सारे अमाउंट्स अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, इज इट इन लैक्स? सो यू विल नॉट से करोड़ एंड देन लैक्स एंड ऑल। हम लोग ये फॉर्मेट बनाते हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं रुपीज़ इन लैक्स। तो हम सारे फॉर्मेटिंग में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? लैक्स है। 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लैक्स। सो वो सिर्फ जैन में आएगा, इक्विटी शेयर हर मंथ में इशू नहीं होता, सिर्फ जैन में आ रहा है। प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 लाख रुपए का लोन भी उठा रहे हो, तो 13 लाख का लोन भी कौन से मंथ में आ गया? जैन। सो दैट्स आउट। डू यू अग्री विद दैट? Okay, then receipt from debtor. Debtor are the people from whom we have to receive the money. क्यों? Because हमने goods बेचा है। और अगर इसका credit period आपको याद हो तो they said company will make credit sale only and this will be collected in the second month following the sale. Second month following the sale पे पैसा आएगा, मतलब जैन में जो हम सेल करेंगे उसका पैसा कब आएगा? मार्च। जैन में सेल कितनी है? 30। पैसा कब आएगा? मार्च। जैन में कौन सा पैसा आएगा? आएगा ही नहीं, बिकॉज दैट्स अ न्यू बिजनेस। फेब में कौन सा पैसा आएगा ही नहीं, इट्स अ न्यू बिजनेस। अगर न्यू बिजनेस नहीं होता तो लास्ट टाइम की तरह बैलेंस शीट दिया होता जहां से हम बैलेंस शीट से अमाउंट उठाते डेटर्स की, बट दिस टाइम दे आर सेइंग इट्स अ न्यू बिजनेस, सो देयर इज नथिंग कमिंग इन मंथ ऑफ जैन एंड फेब। जैन का सेल मार्च, फेब का सेल अप्रैल, मार्च का सेल मई, अप्रैल का सेल जून। कॉन्सेप्ट समझा आपको? टू गुड। 100 प्लस 13 इज 113। 113 ओपनिंग बैलेंस था नहीं, फेब में तो कोई पैसा आ ही नहीं रहा है, मार्च में 30, 35, 35, 40, दैट्स द टोटल ऑफ बी। ए प्लस बी सिर्फ फर्स्ट मंथ में कर सकते हो आप। आउटफ्लो, पैसा जा कहाँ रहा है? तो फर्स्ट वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द मनी इज गोइंग टू व्हाट? कहाँ जा रहा है? असेट्स खरीद रहे हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी खरीदा 20 का, लैंड एंड बिल्डिंग 40, फर्नीचर 10, मोटर व्हीकल 10, 20, 40, 60, 70, 80। 80 लाख के मैंने फिक्स्ड असेट्स खरीदे, 10 लाख का मैंने स्टॉक खरीदा। और ये दोनों कब हुआ? जैन में। गॉट दैट? ओके, नेक्स्ट कम्स क्रेडिटर्स एंड सी द वे आई एम प्लेइंग विद क्रेडिटर्स। हाँ, अभी बहुत क्वेश्चंस कर लिए जहाँ पे मैंने ये लॉजिक और फंडा आपको सिखाया हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 1, क्रेडिटर। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जीपी कितना बोला था? 25% ऑन सेल। जीपी इज 1/4 ऑन व्हाट? सेल। Therefore, COGS, that is cost of goods sold, is equal to 3/4 on what? Sales. Assuming opening closing भी नहीं, इस क्वेश्चन में तो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 5 पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कंपनी विल कीप अ मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ हाउ मच? 10। हर मंथ हम लोग 10 का रॉ, यहाँ पे 10 का रॉ मटेरियल खरीदा स्टार्टिंग में, एंड ऑफ द मंथ पे भी 10 होगा, उसके एंड ऑफ द मंथ पे भी 10 होगा, हर मंथ 10 का स्टॉक रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? दैट परचेज इज इक्वल टू COGS इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सेल्स। अगर उन्होंने 10 कहा भी नहीं होता ना तो हम एक नोट लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो, वी यूज्ड टू राइट दैट ओपनिंग विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू क्लोजिंग, एंड इफ ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग देन परचेज इज इक्वल टू COGS, and purchase is equal to COGS, that is 3/4 on sale. Profit 1/4 on sale है, सेल का एक पार्ट प्रॉफिट है तो भाई 3 पार्ट कॉस्ट हुआ ना। कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि नहीं? फ्रैक्शन समझना चाहिए आपको। यहाँ पे भी अगर आप फ्रैक्शन नहीं समझ सकते हो, वी सेड 1/4, 4 पार्ट, 4 पार्ट में से अगर एक पार्ट चला गया तो बचे कितने पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट क्या है उसका? कॉस्ट। कॉमन सेंस क्या बता रहा हूं? जैन की सेल देखिए आप, हाउ मच इज द सेल ऑफ द मंथ ऑफ जैन? कितना? 30 का 3/4, दैट इज 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इज 22.5। कितना? नाउ दैट इज जैन का परचेस। जैन का पे कब कर रहे हैं?
क्रेडिटर्स विल बी पेड इन द फर्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्रेडिट परचेज। मतलब जैन में परचेज करेंगे तो पे कब करेंगे? तो जैन का सेल उसका 3/4 उसका परचेज है और पेमेंट होगा फेब में। फेब में पेमेंट 22.5। दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर। ये नोट कंप्लीट करने के लिए जैन का पेमेंट फेब एंड देन द सीक्वेंस विल कंटिन्यू। तो फेब का सेल 35, 35 का 3/4 26.25, 26.25 का पेमेंट कब होगा? मार्च। मार्च का सेल 35 अगेन, सो 26.25 का पेमेंट कब होगा? अप्रैल। अप्रैल का सेल 40, 40 का 3/4 इस 30 का पेमेंट कब होगा? मई। एंड देन मई का 40 अगेन 30 का पेमेंट कब होगा? जून। दिमाग चल रहा है आपका? पक्का? ओके, नेक्स्ट वन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितने का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है? पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ 1 लाख विल बी मेड इन द मंथ ऑफ जैन। तो 1 लाख का खर्चा कौन से मंथ में? जैन। काम खत्म। नेक्स्ट, wages and salaries, salaries and wages, salaries and wages will be paid at 2 lakh each month and will be paid on the first day of the next month. Salaries and wages, अपना accounts का concept थोड़ा, salaries and wages मतलब ये कहाँ पे आने वाला है? P&L accounts में। कितना पे कर रहे हो? 2 lakhs। कब पे कर रहे? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब जैन में जो salaries and wages होगा उसका पेमेंट होगा फेब में, और जैन में किसका पेमेंट होगा? किसी का नहीं, बिकॉज ये तो नया बिजनेस है। अगर नया बिजनेस नहीं होता तो कहना इसे दिसंबर का पेमेंट जैन में होता, बट दिस टाइम इट्स अ न्यू बिजनेस, सो देयर विल बी नो पेमेंट इन द मंथ ऑफ जैन। नो जैन, फेब में 2, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 2, जून में 2। बट कौन सा 2 जा रहा है? पहले वाले मंथ का जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, एडमिन। Administration expenses of 1 lakh per month will be paid in the month of their incurrence. Every month 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Jakas. Total 90, 92, 23, 24, 25.5, 26, 27, 28, 29.25. 29.25, 33, 33। कूल। चलो कैलकुलेशन प्लीज सर, आप साथ में करेंगे। 113 माइनस 92, वेरी गुड। तो 21 रुपी क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब 21 लाख रुपीस अपना क्लोजिंग बैलेंस है। कोई लोन लेने की ज़रूरत? अच्छा खासा बैलेंस है, क्यों लोन ले? 21, 21, 21 माइनस 25.5, 4.5 नेगेटिव हो गया, तो लोन लेना पड़ेगा। कितने की लोन ले? 4.5 की ले लेते हैं। 4.5 की लोन लेंगे, कितने % पे आएगी ये लोन? वेरी गुड। और इसका इंटरेस्ट कब पे करोगे? 1 साल बाद। लोन भी कब पे करेंगे? 1 साल बाद। और हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। सो हम चालू करेंगे 0 से इस टाइम। 30 माइनस 29.25, इज इट 0.75 पॉजिटिव? कोई प्रॉब्लम आपको 0.75 से? लोन ले फिर से? नहीं। क्यों ले? पैसा है ना। 0.75, 0.75 प्लस 35, 35.75, 35.75 माइनस 29.25, 6.5 एग्जैक्ट। नो लोन 6.5, 6.5 प्लस 35, 41.5, 41.5 माइनस 33, 8.5 अगेन नो लोन, 8.5, 8.5 प्लस 40, 48.5 माइनस 13, 13, 15.5. Too good. That's your cash budget. कोई doubts? Now
कैश बजट पे एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं बनाया गया था गाइज, ये तो हम सीख रहे थे इसीलिए सीख लिया। एक्चुअल क्वेश्चन बनाया उन्होंने, कहा है आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है 6 मंथ का और आपको एक बैलेंस शीट भी बनाना है। हैव अ लुक हियर, इनकम स्टेटमेंट and the balance sheet for 6 months. So this is my trading P&L and this is my balance sheet. Trading and P&L and this is our balance sheet. June 2000, ईयर कौन सा लिखा हुआ है? 12। वेरी गुड। चलिए, now we are required to prepare the trading and profit and loss balance sheet along with the cash budget. So guys, the thinking has to be FM वाली थिंकिंग चल रही है और अकाउंट्स वाली थिंकिंग साथ में चलनी चाहिए, बिकॉज आपने जो कैश बजट बनाया वो कौन सी थिंकिंग से बनाया हम लोग ने? FM। क्यों? बिकॉज हम सिर्फ पैसे सोच रहे थे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट सेल कब हो रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट पैसा कब आ रहा है। सो यर वी वर थिंकिंग पैसा कब आ रहा है, पैसा कब जा रहा है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला अकाउंट्स बनाओ। सो यहाँ पे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट पैसा कब आ रहा है और पैसा कब जा रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट योर सेल कब हो रही है, परचेज कब हो रहा है, एक्सपेंस कब हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो थिंकिंग गोज फर्स्ट ट्रेडिंग एंड P&L, इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल, इज इट टू ओपनिंग स्टॉक? Nil. क्यों nil? It was a new company. There's absolutely no opening stock. Next, to purchase. To purchase. If I'm not wrong, your purchase are 3/4 of sales. और ये जो ट्रेडिंग एंड P&L बन रहा है ये 6 months का टुगेदर बन रहा है, 6 months. सो इफ़ यू आर सेइंग 6 months का हम साथ में बना रहे हैं तो टोटल परचेज चाहिए 6 month की, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट कितना हुआ. सो आई एम टेकिंग टोटल ऑफ सेल्स ऑफ दो 6 months. जैन का सेल कितना है? 30, 35, 35, 40, 40, 45. उसका 3/4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4. आई एम गेटिंग 168.75. ये तो परचेज वहाँ दिख रहा है. एंड प्लस इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, योर परचेज वन मोर, कैन आई से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हियर. सो वो परचेज तो हमें जो सेल से मिल रहा है वो 168.75 प्लस 10 हमने स्टार्टिंग में खरीदा था. सो माई परचेज विल बी 168.75 plus 10 is equal to 178.75. 178.75. That's my purchase. Concept clear? Okay. But thinking एक साथ चले. सिर्फ ऐसा परचेज लिख के छोड़ मत दो. Now we need to start thinking that अगर ये कैश परचेज होता तो पूरा पेमेंट हो गया. But are we paying them fully? If I'm not wrong, I'm paying them after a month. I'm paying them after a month. कितना पेमेंट किया हम लोग ने क्रेडिटर्स को? हमने टोटल परचेज किया है 178.75. आप मेरे साथ कैलसी में यूज़ कीजिए. 178.75 माइनस 10. मैं भी करता हूँ आपके साथ. माइनस 10 मतलब ये क्या हो गया पता है? ये पेमेंट्स हो गए. वो उतना परचेज दिया, ये सारे पेमेंट्स हो गए. तो अगर पेमेंट्स माइनस कर दो, परचेज में से पेमेंट्स माइनस कर दो, तो कहने से आई विल गेट द बैलेंस दैट इज नोन एज क्रेडिट. पे करना बाकी है. माइनस 10 माइनस 22.5 माइनस 26.25 माइनस 26.25 माइनस 30 माइनस 30. इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम गेटिंग 33.75. दैट 33.75 guys is nothing but creditors. 33.75 आ रहा है दिमाग? ओके. एक और चीज़ गाइज, ये तो ठीक है, कॉमन सेंस समझा रहा हूँ, इतना परचेज किया, इतना पेमेंट किया, बट अदरवाइज ऑल्सो क्रेडिट पीरियड कितने मंथ का था? 1 month. 1 month का क्रेडिट पीरियड मतलब क्या? जैन का पेमेंट कब करोगे? फेब का पेमेंट कब करेंगे? मार्च. बैलेंस शीट कौन सी डेट की बना रहे? जून. तो हमें यह जानना है कि जून में कौन सा पेमेंट नहीं हुआ है. 1 month का क्रेडिट पीरियड अगर मैं बोलूं तो कहना है जून का पेमेंट जुलाई में होने वाला था, मतलब जून का पेमेंट नहीं हुआ है.
इफेक्ट जून का जो पेमेंट नहीं हुआ है वही हमारे क्रेडिटर्स है। सी आई विल शो यू। आप फिर से एक बार सेल्स के फिगर पे जाइए, जून का सेल्स उठाइए, हाउ मच सेल्स इन द मंथ ऑफ जून? 45, उसका 3/4 कर लो, into 3 divided by 4, if I'm not wrong, are you getting same 33.75? मतलब जून का परचेज 33.75 वही हमारे क्रेडिटर हो सकता है। आप परचेज में से पेमेंट माइनस कर दो, या तो आप सीधा जून का पेमेंट उठा के यहां पे डाल दो, तो वही होगा। योर कॉमन सेंस हैज टू वर्क ऑन बोथ द प्लेसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? टू गुड। चलो नेक्स्ट, ऐसे कॉमन सेंस थोड़ी मेरे साथ और चलाओ। अभी ये परचेज लिखा ना मैंने, बाय सेल्स, बाय व्हाट? सेल, 6 महीने का सेल। सो हाउ मच इज 6 मंथ्स का सेल? सारे सेल्स को टोटल करो, 30, 35, 35, 40, 40, 45, कितना? 225। 225 का क्या हुआ? सेल्स। 225 के सेल हुए टोटल। पैसा कितना आ चुका? कैलकुलेशन मेरे साथ कंटिन्यू रखोगे, कैलसी पे 0 नहीं आना चाहिए। 225 माइनस 30 माइनस 35, ये सब पैसे आ गए। 225 का सेल किया और ये सब पैसे आ गए। सो 35 माइनस किया तुम लोग ने, माइनस 35 एक और बार, और ना माइनस 40, कितना? 85 क्या बने मेरे? डेटर्स 85। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये तो ना मैं तुमको बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, बट अभी कॉमन सेंस मेरे साथ, कॉमन सेंस फिर से एक बार। डेटर का मतलब क्या होता है? यू हैव बीन लर्निंग इट सिंस द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स। यू हैव बीन लर्निंग डेटर का मतलब होता है पीपल फ्रॉम होम वी हैव टू टेक मनी। जैन का पैसा कब आ रहा था? मार्च में। मैं 30 जून की बैलेंस शीट बना रहा हूं और मैं यहां पे सोच रहा हूं मेरे पास किसके पैसे नहीं आए। जैन का पैसा तो मार्च में आ गया, फेब का पैसा अप्रैल, मार्च का पैसा मई, अप्रैल का पैसा जून, जून का पैसा नहीं आया, जुलाई का पैसा नहीं आया। बॉस, जून और जुलाई के सेल मेरे डेटर है। जून और जुलाई के क्या क्या भूल गया मैं इधर? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, मई और जून के सेल मेरे डेटर है। मई और जून चेक करो। मई का सेल कितना? 40। जून का सेल कितना? 45। 40 प्लस 45 कितना? 85। And you guys being in IPCC, you should have both the mentality, FM mentality that is cash and accounts mentality that is transaction. Concept clear? Okay. Next, if I'm not wrong, will I have closing stock? कितने का closing stock रख रहा था कंपनी? 10. So, closing stock 10. Got that? 225 plus 10, 235, 235, 235 minus 178.75, 235 minus 178.75, 56.25. Now you check it out very slowly. This is to the gross profit. If the are correct, ये कितना होना चाहिए था? 1/4 और as good as 25%. चेक करो, 225 का 25% निकालो and tell me that is 56.25. पक्का ना? उसका मतलब तुम्हारे कैलसी चल रहे बरोबर से। ठीक है, आगे जाते हैं। जीपी आ गया, बाय जीपी 56.25. ओके, नाउ व्हाट? अब कौन से खर्चे हुए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1, बट ये पीएनएल में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे दिस इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 1. नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6, 6 का खर्चा 2. एडमिन एक्सपेंसेस 6. एंड आर यू पेइंग इट इन द सेम मंथ? एग्जैक्टली सेम मंथ पे किया, मतलब नो आउटस्टैंडिंग, कुछ बाकी नहीं है पे करना। ओके,
Salaries and wages, if you remember, they are 2 lakh every month. 2 lakh every month, if I remember. 2 salaries and wages. Is it 12 lakhs? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12. But payment कब कर रहे थे? 1 of the next month. अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 10 की पेमेंट हुई. एक्सपेंस कितने हुए थे? 12. 10 की पेमेंट हुई. Outstanding salaries and wages. Is it 2? Are you clear with that? चकास. और क्या? चलो और अभी बैलेंस शीट आइटम्स उठाते हैं. इक्विटी कितना? 100. तो इक्विटी कैपिटल 100. 12% बैंक लोन कितना? आई गेस 13 का लोन हम लोग ने यहां लिया और 4.5 का लोन हम लोग ने यहां लिया. सो गाइस कितना लोन जमा हो गया? 13 प्लस 4.5 कहना है 17.5 का लोन जमा हो गया. 17.5 का लोन, उस पर क्या पे करना पड़ेगा हमें? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ये रब कर रहा हूं, ये कोई वर्किंग नहीं है. वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन. फर्स्ट वन 100 का लोन लिया था, नहीं सॉरी 13 का लोन लिया था 12% पे. कब लोन लिया था? जैन में. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इंटू 6/12. कैलकुलेट करो. 13 इंटू 12% इंटू 6/12. 13 इंटू 12% इंटू 6/12. 0.78. और एक लोन लिया आपने 4.5 इंटू 12% इंटू, कब लिया ये लोन? कब लिया ये लोन? फेब में. फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 5 मंथ्स. 4.5 into 12% into 5 divided by 12. 0.225 into 5/12 is equal to 0.225. करेक्ट है? ऐड करो 0.78 प्लस 0.225. 1.005. What is 1.005? Interest. Interest on loan. 2. Interest on loan. 1.005. पे किया इस लोन को या इंटरेस्ट को? ना. क्वेश्चन क्लियरली टोल्ड यू कि बॉस पूरा लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर. अभी तो ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ है. मतलब कहना है ये पूरे का पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन व्हाट? लोन 1.005. 1.005. थिंकिंग सेट है? पक्का? टू गुड. और क्या खरीदा हम लोग ने? फिक्स्ड एसेट्स खरीदे 80 के. फिक्स्ड एसेट्स 80. डेप्रीशिएशन बोला था क्वेश्चन में, कितना परसेंट डेप्री बोला उन्होंने? 10%. बट कितना मंथ्स हुआ गाइस? 6 मंथ्स हुआ ना खाली. लेस द डेप्रीशिएशन 10%, 6 मंथ्स खाली. इज इट 476? 2 डेप्रीशिएशन 4. आई गेस वी आर डन. पक्का? चलो क्लोज कर दो. 56.25. 56.25 minus, now that's where the accounting thinking has to come little bit यहाँ पे ये question में. 56.25 minus 6 minus 12 minus 1.005 minus 4. बोलो कितना? to net profit. बोलो 33.245 आ रहा है? 33.245. That's the net profit that will go to P&L account. P&L account 33.245. That is it, guys. Now try tallying your balance sheet and it must tally. If it does not tally, throw your calcies. 33.75, 2 and 1.005. I'm getting a total of 187.5. Asset side का total करो. 76 plus 85 plus 10 plus 1.
क्या भूल गए? टैली तो नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हो? नहीं, क्या भूल गए हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक लिखा, बैंक लोन 17.5 लिखा, व्हाट आर वी फॉरगेटिंग? मिला? टैली नहीं हो रहा है, ढूंढो। इतना बड़ा कैश बजट बनाया हम लोगों ने। हाउ मच इज द कैश बजट? यही ढूंढने के लिए तो पूरा 6 महीने का कैश बजट बनाया कि कैश कितना होगा अपना। सो गाइस, कैश इन बैंक एट द एंड ऑफ 6 months is 15.5, and now you can tell me that it tallies. Does it tally? It has to. कोई डाउट्स? टू गुड। चलो कॉपी कर लो, इस चैप्टर को थैंक यू बोल दो, और फिर हम लोग ना कोई अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, ठीक है?